discussing the economic review, and in the previous lecture we discussed the chapter 1 and some portion of chapter 2 also. So let's quickly rewind in 5 minutes what we discussed in the previous class. Okay. So first of all, it is the economic review. It is not a survey, and it has two chapters. First chapter is basically talking about the journey of Indian economy since 1950 to 2014, and in this we discuss the decade wise performance. So what was the status at the time of independence? So we got 3.8% share of world income in 1952 as compared to 22.6% in 1700. Then next decade was the first decade, 1950 to 1960, first and second 5-year plan, where we focused upon the rapid industrialization, and still we were facing many challenges like wars, drought, high taxation in the 1960s. Then we faced many economic challenges. In this time only, we got green revolution and many things. Food security, Food Corporation of India, PDS, buffer stock, everything. Then came 1980s, where we were focusing on enhancing the domestic competitiveness, more integration with the global economy. Slowly, just before the 1991 reforms, we were, slowly opening our economy under the leadership of Rajiv Gandhi ji. Okay, graduated liberalization and relaxation in the foreign trade policy, right? So that we started in the 7th 5-year plan already. Then in 1991, because of the crisis, we abandoned inward-looking trade strategy. We followed the conditions of the Washington Consensus because of the IMF bailout plan that we got. Then positive momentum after 2000s, 1998 to 2002, we started various social sector initiatives like Sarv Shiksha Abhiyan, Rural Health Mission, and MG Narega. What are the lessons that we learned? First of all, open economy and increasing role of private investment and important role of technology. From 2014 onwards, now we discussed that what are the major developments, recently important indicators. We are the fastest growing economy in the G20. The growth is more than 7%, and now we are focusing on the job creation also. Infrastructurally, we are working on all the parameters. Number of airports have doubled, and we are also focusing on the higher education. So, and apart from that, we are focusing on the fiscal management and the crude oil management. All these things we discuss the reforms in the financial sector in the form of merger of banks, recapitalization, SARFAESI Act, and IBC. Then what is the role of IBC? Regulatory simplification by introducing the RERA in the real estate sector. Tax policy reforms like GST and reduction in the tax rates for the sovereign wealth fund, pension fund, and abolition of dividend distribution tax. Then private sector engagement is increasing under the two programs, Atmanirbhar Bharat and the Make in India. Regulatory simplification. So this is discussed. Ease of doing business through Companies Act and support for MSME, startups, and etc. So all this is very important in the industrial sector, right? Industrial sector के जो हमारे आंसर्स होते हैं उसके अंदर लिखने के लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, और सिमिलरली टैक्स रिफॉर्म्स यहाँ से पिकअप कर सकते हैं हम लोग. प्राइवेट सेक्टर के लिए हम कैसे इनवाइट कर रहे हैं वो हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं. तो वी हैव टू पिकअप दीज थिंग्स इन द रेलिवेंट चैप्टर. मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. Then some challenges are there. Then we started discussing sector wise in the chapter 2. Chapter 2 mein, first of all, we saw the basic things, and then domestic economy, real GDP, and role of manufacturing in the GVA. This is approximately 18.4% under the financial year 2018, right? Service sector role is increasing approximately 54.5% in 24. Then private final consumption expenditure is increasing around 60.8%. Then per capita gross national income is also increasing. This is the trend of per capita gross national income. Now investment. The investment is also on the upside. So it was at the top just around at the time of crisis of 2008-9. Then it started going down, and finally it reached the lowest because of the NPA problem. NPA problem की वजह से ये आपका lowest पहुंच गया. Then started
picking up, but because of COVID, it again came down and then started picking. So now we are expecting that this will continue, right? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके ऊपर आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो इसी के अराउंड हम पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसी के अराउंड हम गवर्नमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, ये डाउन क्यों गया, और अब हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट पिकअप हो रहा है। अब हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट पिकअप हो रहा है, जैसे कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3 टाइम्स हो चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। ग्रोथ इन नॉन फूड बैंक क्रेडिट, दैट मीन्स क्रेडिट इज नाउ इंक्रीजिंग। जो हमारा क्रेडिट कल्चर है, पहले देखिए ये काफ़ी हाई था, देन इट वेंट डाउन, देन लोएस्ट कोविड के टाइम पे, नाउ स्टार्टेड पिकिंग अप। इट शोज द क्रेडिट ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर। तो बेसिकली दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर based growth. That means in the expenditure method of GDP, we have investment based growth, investment led growth, right? So more and more capital expenditure, okay, more and more investment rate. Investment rate क्या शो करता है? Investment rate अपने आप में capital expenditure ही शो करता है ना। Investment जो है वो आपका capital expenditure ही होता है। Capital expenditure is something which is there, or that means it is the investment led economic growth. तो अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। कंजम्पशन लेड ग्रोथ में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना खर्च, कितना हमारा शेयर है, कितना शेयर है पीएफसी का, हाउ मच? 60%। पीएफसीई का 60% है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 10% है, और इन्वेस्टमेंट का अप्रोक्सीमेटली 30% है। नेट एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसको आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। ये अभी आपको मतलब क्लैरिटी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे ये चीज़ें एम्फेसाइज की जा रही है। इस बार इस पे क्वेश्चन बन सकता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली 60%, मतलब अगर 100% हमारा जीडीपी है तो उसमें से 60% जो है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से आ रहा है। पीएफसीई 60%, जीएफसीई 10%, देन इन्वेस्टमेंट इज 10%, सॉरी 30%, और नेट एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल है, मतलब 1-2% है, वो काउंट नहीं करते, इसी के अंदर वो हो जाता है। इन्वेस्टमेंट लिखते हैं हम लोग। वैसे अगर टेक्निकली जाओगे तो आप वो भी लिख सकते हो, जीडीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट उसके अंदर भी क्या होता है ना कि जो आपका 2 पोर्शन होते हैं, एक आपका होता है इन्वेंट्री होता है, हाँ, एक जीसीएफसी होता है, जीसीसीएफ होता है, और एक आपका इन्वेंट्री होता है। तो इन्वेंट्री वाला नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, सेकंड वाला पोर्शन मोस्टली। ओके, नाउ बेसिकली देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिंग इज वन थिंग। जस्ट बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल कैन वी कन्वर्ट इट इनटू द ग्रोथ? सिर्फ पैसा खर्च करने से क्या ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगी? क्या पैसा खर्च करने से ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा? नहीं। बेसिकली वी हैव टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स विच स्टॉप द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्ट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्चुअली 2 चीजें होती हैं, एक होता है सेविंग्स, है ना, और दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सेविंग्स क्या होती है कि आपके पास पैसा है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने उसको एसेट में लगा दिया। आपने कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपने एसेट को परचेज करना था, एसेट को परचेज कर लिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो आपका ये है, ये इन्वेस्टमेंट रेट ग्रो क्यों किया है? एक तो है कि हमने सेविंग्स भी बढ़ाई है, ठीक है, वो एक चीज होगी। लेकिन वो सेविंग्स बढ़ाने के साथ साथ में हमने जो हमारे रेगुलेटरी चैलेंजेस थे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, राइट। तो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम थी, आई एक्सप्लेन दिस, क्योंकि इसका इन्होंने बार बार यूज किया है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सर्वे के अंदर।
This word they have used many times. Twin balance sheet problem. What is this? Basically, due to NPAs, basically क्या हुआ कि till 2008 we had high amount of loans. लोन्स बूम कर रहे थे, आपको याद होगा 2006 टू 2008 वेरी वेरी हाई लोन्स, ठीक है। लेकिन 2008 क्राइसिस आने के बाद में ये आपका डिक्लाइन की तरफ चला गया, राइट। और ये जो लोन्स थे ये आपके डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गए, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। क्यों स्टार्ट हुए लोन डिफॉल्ट? बिकॉज 2008 क्राइसिस के आने के बाद, आफ्टर द 2008 क्राइसिस, द कॉर्पोरेट बैलेंस शीट सफर्ड। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हमारी सफर हुई, यानी कि कॉर्पोरेट जो हमारे बिजनेस कर रहे थे उनको प्रॉब्लम रही 2008 क्राइसिस की वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट की आपकी डिमांड कम हो गई, राइट। और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमारा कोरस्पोंडिंगली कम हो गया, फॉरेन से आना 2008 की वजह से, क्राइसिस की वजह से। तो फर्स्ट आपकी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट प्रॉब्लम हुई। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट प्रॉब्लम होने से इन्होंने इसको डिफॉल्ट किया, लोन को, ठीक है। और ये डिफॉल्ट होने की वजह से बैंक्स के हाई एनपीएस बने, राइट। और एनपीएस होने की वजह से हमारी बैंक की बैलेंस शीट भी खराब हो गई। क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन है वो एसेट साइड में आते हैं, और जब कोई भी लोन एनपीए होता है तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, और प्रोविजन से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है ऑन द वन हैंड, एंड सेकेंडली हमारी जो एसेट की वैल्यू भी डाउन होती है, ठीक है। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और हमारी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है। तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी प्रॉब्लम में आ गई बिकॉज ऑफ बिजनेस इश्यूज, और आपकी बैंक बैलेंस शीट भी प्रॉब्लम में आ गई, राइट। अब ये जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसमें हमने बताया कि एक तो 2008 क्राइसिस था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर सम रेगुलेटरी इश्यूज। रेगुलेटरी इश्यूज थे बिकॉज ऑफ विच द प्रोजेक्ट वर स्टॉल्ड, तो हम कहते हैं स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, राइट। तो रेगुलेटरी इश्यूज क्या थे हमारे? रेगुलेटरी इश्यूज वर लाइक डिले इन अप्रूवल्स। So we have multiple level of government, state government, central government, local government, and various kind of approvals are required, environmental approval and business start approval and so many things. Problems in land acquisition. लैंड एक्वायर करनी स्टार्ट करी और वहां पर प्रोटेस्ट आने स्टार्ट हो गए, राइट। लैंड एक्विजिशन इश्यूज, राइट। और ये जो इनका जो 2008 क्राइसिस था उससे तो प्रॉब्लम इनको डेफिनेटली आई, और बेसिकली जिससे कि आपका इनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। और otherwise also there was difficulty in doing business, ease of doing business was not very good। ओवरऑल जो है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा अच्छा नहीं था। ओवरऑल जो हमारी रैंकिंग थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, दैट वाज नॉट गुड, राइट। सो इट रिजल्टेड इनटू द प्रॉब्लम ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। इससे क्या प्रॉब्लम हुई? स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम हुई, यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो हमारे स्टॉल होने स्टार्ट हो गए। जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो हमारे स्टॉल होने स्टार्ट हो गए, और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी गॉट द प्रॉब्लम ऑफ हाई एनपीए, जिससे कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हमारी खराब हुई और बैंक की बैलेंस शीट खराब हुई। ये इसको हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसी को हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट में कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट और बैंक्स की बैलेंस शीट दोनों हमारी वीक हो गई, राइट। एक होता है आपकी फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम, एक एसोसिएटेड टर्म्स है, इसी का एक्सटेंशन है फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन की जगह पे उसमें हो जाता है फोर। तो फोर बैलेंस शीट में अपार्ट फ्रॉम बैंक एंड कॉर्पोरेट,
बैंक एंड कॉर्पोरेट तो ट्विन के अंदर आ ही चुका है। इसके अलावा वी हैव द पावर sector companies balance sheet. Power sector companies, basically those companies who are installing the long term electricity projects, power generation projects, especially the private companies and state level companies. They need the loan for long term. उनका जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और अगर उनके प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाए, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो गए, तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर द बैंक, राइट। और जब बैंक फंसे यहाँ पे, तो बैंक के साथ साथ में इनके जो एनबीएफसीज होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हमारे यहाँ पे फंसने स्टार्ट हो गए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो भी लोन देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो जो हमारी एनबीएफसीज हैं विच आर इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लाइक IL&FS, ठीक है, तो इनके जो लोन्स है वो भी डिफॉल्ट होने स्टार्ट हुए। जो कंपनीज है इनके, इन्होंने कंपनीज ने एनबीएफसीज के लोन भी डिफॉल्ट करने स्टार्ट किए, जिससे कि जो हमारी एनबीएफसीज की बैलेंस शीट है ये भी हमारी वीक होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ओके। तो आपके इकोनॉमिक रिव्यू में बार बार ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का यूज हुआ है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन्होंने बार बार इस वर्ड को यूज किया है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो ट्विन बैलेंस शीट या फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम को जो पूछ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, राइट। क्लियर एवरीवन? Reduce brightness of the screen. PPT is not clearly visible. Okay. हाँ, लाइट, ये लाइट एक बार जरा कम करना, कम हो सकती है लाइट ये, एक बार चेक कर लो, क्योंकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वो स्क्रीन जो है ना वो क्लियर नहीं है। अभी फैन से थोड़ा बच के रहो, ये धोखा देने वाली गर्मी है ये। इज इट ओके? ऑनलाइन बेटर है क्या अभी? इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 30% है मुस्कान, ठीक है, ओके। कमिंग बैक, ये देखो है ना, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज 29.8, 30 हमने लिखा था। PFC हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 60.8। हम्म, नॉन फूड, जो फूड के अलावा है, इसकी इंडस्ट्री में ऑयल, हाँ हाँ, ऑयल रिफाइनरी, नॉन फूड, हाँ। ऑयल, गुड ऑयल तो वो तो नहीं खाते। एडिबल ऑयल, अच्छा एडिबल ऑयल लग हो गया, हाँ। वो फूड में आएगा एडिबल ऑयल, तो मतलब जो फूड है वो फूड में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया बैलेंस शीट रिपेयर, है ना। तो ये जो बैलेंस शीट रिपेयर है किसकी की है? कॉर्पोरेट की और बैंक की। तो इसी को हम लोग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते थे, तो इसको इन्होंने रिपेयर किया, है ना। इसके बाद देखिए 14 के बाद ये और भी डाउन गया, 14 के बाद और भी डाउन गया। क्यों डाउन गया 14 के बाद में? हाँ, बेसिकली रिकॉग्निशन करना स्टार्ट किया हम लोगों ने। इससे पहले जो है 2008 के बाद डिफॉल्ट होना स्टार्ट हुआ था, फिर हमने क्लीनिंग अप करना स्टार्ट किया। आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन लेके आए कि जितने भी आपके एनपीएस है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके ऊपर काम किया जाए। तो बेसिकली जब हमने एनपीएस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, तब हमें पता चला कि एनपीए तो बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा आपका न्यूज़ में आया, जिससे कि बैंक्स को भी काफ़ी एक मतलब चैलेंज फेस करना पड़ा। बैंक्स भी जो लोन देने से डरने लगे, तो ये आपका और डाउन होता चला गया, ठीक है। तो हम लोग रिपेयर का करने का काम कर रहे थे, और जो आपके बैंक से देवर बिकमिंग रिस्क एवर्जन,
दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ रिस्क एवर्जन, है ना, वो रिस्क एवर्ट हो गए, क्योंकि जो लोन उनके डिफॉल्ट हो रहे थे, उनकी कैपिटल डाउन हो रही थी, उनके जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो रही थी, तो उसकी वजह से उन लोगों ने और लोन देने कम करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन 2014 के बाद ही हम लोगों ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे कि लैंड एक्विजिशन बिल को हमने चेंज किया, आईबीसी 2016 में लेके आए हम लोग, 2014 में मेक इन इंडिया लेके आए, उसके बाद हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन किया, उससे भी थोड़ा रिवर्स इम्पैक्ट पड़ा, और जीएसटी हम लेके आए 2017 में। तो बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने यहाँ पे रिफॉर्म्स काफ़ी किए, लेकिन ये रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे दिखना जैसे शुरू हुआ, वैसे ही फिर कोविड आ गया, राइट। तो ये स्टोरी जो है लास्ट 10 ईयर्स की हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, राइट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए, मेन चीज क्या है कि इकोनॉमिक रिव्यू की ये जो लाइंस है, ये इसके पीछे की बैकग्राउंड समझनी है आपको। अगर इसके पीछे की स्टोरी पता रहेगी तो ये चीज आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोरी जो है हमने डिस्कस की 2014 के टाइम पे, जब हमने देखा कि हमारे एनपीएस इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो रही है, और वो की फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रही है, तो सबसे पहले हम लोगों ने काम किया स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए, राइट। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स जो थे हमारे, उसको एड्रेस करने के लिए तो हमने कंस्ट्रक्शन डिलेज के ऊपर काम किया, हाउ टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन डिलेज। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जैसे कि एक होता है हमारा प्रगति पोर्टल। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनको हमने स्ट्रीमलाइंड वे में उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एनएफिशिएंसीज पे हमने काम किया बाय मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में हमने रेड कारपेट की बात की, फ्रॉम रेड टेप टू रेड कारपेट, right? So we will provide the faster approval, we will provide the good treatment to the investors। फाइनेंसिंग इश्यूज के हमने एड्रेस किया, हमने बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया। बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन क्यों जरूरी था? क्योंकि बैंक्स वर बिकमिंग वेरी वेरी कोशियस इन प्रोवाइडिंग द लोन, उनकी बैलेंस शीट खराब थी, तो हमने उनको रिकैपिटलाइज किया, कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप लोन दीजिए आगे, ठीक है। तो फाइनेंसिंग इश्यूज को हमने टैकल किया, एंड लीगल एंड कंप्लायंस इश्यूज को, इसके लिए हमने आईबीसी पे काम किया, आईबीसी 2016 में हम लेके आए इसको, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिजिटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स के उसको हमने डिजिटाइज किया। इसके लिए हम ई बीज पोर्टल लेके आए, ई बीज पोर्टल जिसको बोलते हैं। जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, अगर आपको कोई भी अप्रूवल चाहिए तो आप ई बीज पोर्टल से इस अप्रूवल को ले सकते हैं। स्ट्रीमलाइंड प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, सपोर्टिव टैक्स इकोसिस्टम, ओके, एंड रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। स्मॉल कंपनीज के लिए 15%, और एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए, जो हमारी पुरानी कंपनी है, उनके लिए 22% हमने किया। यूनिफॉर्म जीएसटी रिजीम, ये 2017 में हमने किया है, राइट। तो दीज आर द रिफॉर्म्स, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे रिफॉर्म्स हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं। इंडस्ट्री चैप्टर में आप इसको अटैच कर सकते हैं, राइट। ये हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो गए, ओके। और साथ साथ में इनको हम कह सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं, तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिंग तो बढ़ाई है डेफिनेटली, एक तरफ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है अपना, वो तो एक चीज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, उसमें जो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी, हमने उसको भी सोल्व किया है, ठीक है। बेसिकली इस बार प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पक्का आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो बेसिकली मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यही पूछेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्या प्रॉब्लम्स थी, और अभी हमने ऐसा क्या किया कि हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट बढ़ गया है। तो उसमें दोनों चीजें हैं, एक तो हमारा जो एनपीएज है वो कम होने से हमारे बैंक्स की लैंडिंग बढ़ गई, गवर्नमेंट ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट से भी खर्चा बढ़ाया, और उसके अलावा हमने जो भी हमारे रिफॉर्म्स थे हम वो रिफॉर्म्स भी लेके आए, राइट। तो देखिए, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर है, इसके अंदर वी हैव थ्री कंपोनेंट।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बड़ा है, ये 3 टाइम्स हो गया। ये देखिए 3 टाइम्स हो गया, 5.6 लाख से 18.6 लाख। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 टाइम्स हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 टाइम्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो अभी इसमें हमें एक चीज ये देखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने विच आइटम वी हैव काउंटेड। तो वी हैव काउंटेड 3 थिंग्स। फर्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट केपेक्स, जो हमारा बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। सेकंड इज ग्रांट टू द स्टेट फॉर द कैपिटल एसेट क्रिएशन। एंड थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल पीएसयू। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, 3 कंपोनेंट्स आर देयर। एक तो जो यूनियन गवर्नमेंट का खुद का बजट है, जो हमारे बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। सेकेंडली, जो हम लोग स्टेट्स को ग्रांट देते हैं, ग्रांट नॉट लोन, यहाँ पे लोन की बात नहीं की गई है, ग्रांट जो हम की, इसको हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए, है ना। और थर्ड हमने बोला इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल पीएसयू। सेंट्रल पीएसयूज भी आपकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही आर्म्स है, राइट। हालांकि इनका जो आपका बजट है ये हमारे यूनियन बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेंट्रल पीएसयूज का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हमारे खुद के यूनियन बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका खुद का सेपरेट बैलेंस शीट बनती है। जो हमारी कंपनीज है ये इंडिपेंडेंट एंटिटी होती हैं। तो बेसिकली अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में 2 तरह की एंटिटी होती हैं। एक होती है डिपार्टमेंटल, जैसे कि रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट, राइट। दूसरी हमारी होती है कंपनी बेस्ड, राइट। एक कैटेगरी और भी होती है कॉर्पोरेशंस, जैसे कि एलआईसी हो गया हमारा, एफसीआई हो गया, ठीक है, जिनके लिए स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं सेपरेटली, आरबीआई हो गया हमारा, ठीक है। तो कॉर्पोरेशंस वगैरह हो गए। और सेकेंडली जो हमारी कंपनीज हैं, जैसे कि ओएनजीसी, एनटीपीसी, तो ये जो कंपनीज है इनका खुद का अपना बजट होता है एवरी ईयर, बिकॉज इनको ऑटोनॉमी है। जो स्पेशली नवरत्ना, महारत्ना और ये है मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, इनको ऑटोनॉमी दी होती है कि ये बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के अपने एक सर्टेन लेवल तक प्रोजेक्ट ला सकते हैं, है ना। याद है आपको, याद आ रहा है। इंडस्ट्री चैप्टर में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, आज शायद मैं डिस्कस करूंगा उसको। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा, ये नाम से हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था वो तो आप जानो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट बेसिकली जो हमारी कंपनीज होती हैं पब्लिक सेक्टर की, जैसे कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, इनकी जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का पार्ट नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारी एंटिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है और हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये लोग अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो इसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर में काउंट करते हैं। पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे काफी ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट का अपना भी, स्टेट गवर्नमेंट को जो उन्होंने ग्रांट दी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और इन्वेस्टमेंट रिसोर्स ऑफ द सेंट्रल पीएसयू, राइट। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी यूनियन गवर्नमेंट को लेके चलते थे, लेकिन जो इन्होंने डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये डेटा के अंदर इन्होंने तीनों का डेटा इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने ये नहीं बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो क्या वर्ड यूज किया है, पब्लिक सेक्टर का, जिसके अंदर सॉरी, हम स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करते हैं और सेंट्रल पीएससी को भी इंक्लूड करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का वो वाला पोर्शन जो हमारे बजट से ग्रांट से गया हुआ है, सिर्फ वो पोर्शन हम इंक्लूड कर रहे हैं, कंप्लीट पोर्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा इनिशिएटिव लिए था वो, ट्विन डेफिसिट? तो फिर फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए होता है। ऐसे डायरेक्टली होगा, लाइक डायरेक्टली ऐसे कुछ, मतलब ट्विन डेफिसिट जो होता है वो फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। हाँ हो सकता है, बट यहाँ पे तो हम अलग ही बात कर रहे हैं कुछ, है ना। देन प्राइवेट कैपेक्स अपसाइकल। तो देखिए हमने यहाँ पे बात की पब्लिक की, ये तो हमारा पब्लिक के बारे में था, राइट। इसके साथ साथ में हम लोगों ने प्राइवेट कैपेक्स को भी हमने इंक्रीज हुआ। ओके, प्राइवेट कैपेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द these industrial and infrastructural reforms, right, as is evident in the IIP, index of industrial production. This is the index which is given by NSO, इंडस्ट्री चैप्टर में इसको हम पढ़ते हैं। मंथली बेसिस पर ये इंडेक्स दी जाती है एनएसओ, बाय द एनएसओ, मंथली, मंथली बेसिस पर
ये इंडेक्स आपकी एनएसओ द्वारा दी जाती है। For showing the robust growth in the capital goods, this was showing the robust growth in the capital goods and the infrastructure construction goods. Basically, in this IIP there are various categories. इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं गुड्स की। तो इसमें जो कैपिटल गुड्स और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं, इनके अंदर हम लोगों ने देखा लास्ट 2 years में देयर हैज बीन ए गुड ग्रोथ, राइट। ग्रीन शूट बेसिकली मीन्स पॉजिटिव इंडिकेटर है, अप मतलब अपवर्ड मूवमेंट इन द कैपेक्स। अच्छा, आवाज कम आ रही है, मैं थोड़ा लाउड हो जाता हूँ। So this thing you can see capital expenditure by the public sector. So the same 3 component are here और इसमें सबसे ज्यादा component किसका है? आपका capital expenditure of the central government. This is the significant portion, 10% आप देखेंगे यहाँ पे, sorry 10 lakh crore. And 3.7 is the grant for capital asset creation to the states and 4.9 is the resources of the public enterprises, right? तो ये है, बाकी आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया था कंपनीज जो हमारी है, जैसे ONGC, NTPC जो कंपनीज है, उन्होंने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। क्या डिटेल्स हुआ है? टाइम के साथ रिड्यूस हुआ है? नहीं, लास्ट देखिए 4.8, 4.4, 4, 4.9। नहीं नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट तो हो गया कि जो हमने गवर्नमेंट ने सेंट्रल PSUs में अपनी स्टेक होल्डिंग सेल कर दी, वो अलग चीज होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो पी हाँ तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 20 में आपको कोविड आ गया था ना, भाई कोविड मार्च में आया था, तो तब तक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका था हमारा, लेकिन मार्च के बाद सडनली में झटका लगा 21-20, तो वो चीज़ हमारी नेक्स्ट ईयर से दिखनी शुरू हुई। तो कोविड की वजह से ये आपका डाउन हुआ है, और ये हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन चलता है। ये 0.4 0.2 से हम लोग डिसाइड नहीं करते। अगर एक दिन हम 2 घंटे कम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि हम पढ़ना बंद कर दिया हम लोगों ने। तो ये बहुत माइनर फ्लक्चुएशन से हम कुछ इंटरप्रिटेशन लेके नहीं जाते। हमें ओवरऑल ट्रेंड देखना है। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तीनों का मिला करके, तो ये हमारा शार्पली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। राइजिंग इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, राइजिंग हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट। देखिए ये सब चीज़ें ये है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ इसको भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन समय बहुत निकल जाएगा और हमारी इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएंगी। मैंने डाली हुई है स्लाइड में दिखाने के लिए, बस आप देखो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसलिए डाली हुई है कि आपको ये ना लगे कि सर कुछ छूट गया हमारा, लेकिन मैं डिस्कस वही करूंगा जो हमारे काम की चीज़ें, एग्जाम वाली जो चीज़ें हैं। जो चीज़ एग्जाम में नहीं आएगी उसको फालतू में हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ट्रेंड्स इन द हाउसिंग सेल्स एंड लॉन्चेस, इसके अंदर भी देखो नए नए लॉन्च हुए हैं, सेल्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर। अब हमारे पास कुछ नया डिस्कस करने के लिए अच्छी चीज आई है, एग्रीकल्चर, राइट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लिख लीजिए। द शेयर इन GVA, दिस इज 18%, राइट, 18%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन GVA is 18%. Okay, this thing you should remember. And average annual food grain production is also on the rising trend. This is 289 million tons in the last 8-9 years. बहुत इतना फ्लक्चुएशन चलता है, पॉइंट मैं वही कह रहा हूँ ना, 0.5%, 1%, इतना फ्लक्चुएशन तो कुछ हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये प्राइसेस की वजह से भी हो सकता है, ये हो सकता है कोई सेक्टर में हल्का फुल्का मानसून का इम्पैक्ट हो गया, कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाती है।
तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा कुछ इंटरप्रेट नहीं करते हैं, लार्जली इतना ही मतलब इसके आसपास ही रहता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप पूरे महीने जम के पढ़ रहे हो और 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, आधे आधे दिन पढ़ाई की, तो आप बोलोगे कि आपने पढ़ना बंद कर दिया है, आपको कोई जज करना स्टार्ट कर दे, तो इससे इंटरप्रेट नहीं करते हम। ये डेटा तो मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको याद रहे कि चलो इसके आसपास है ना। अगर आपको 18% भी याद नहीं रहेगा, अगर आप ये भी लिखोगे 17% अप्रोक्सीमेटली, वो भी ठीक है। इतना स्पेसिफिकली कोई चीज आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए आपको। अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए कि 1/6 हमारा है पार्ट अभी, यानी कि 100/6 समवेयर अराउंड 17% के आसपास है। क्या अब ये 18 पहुंच गया है, कभी 18.5 भी आएगा, कभी 17.5 भी आ जाएगा, बट इससे हम बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करते, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वेरियस प्रोड्यूसेस मिल्क, पल्सेस, स्पाइसेस। तो ये हमारा अभी टॉप में है। और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट, वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी एंड शुगर। इसको आप याद रख सकते हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, और अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो वी कैन कोट दिस इन द मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में शो द अचीवमेंट, अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द प्लानिंग पीरियड, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ फैक्ट्स, हमारी अचीवमेंट क्या है, क्योंकि हमें कमियां तो सब पता है अपनी और दूसरों की लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी पता होनी चाहिए कि हमने कुछ अचीव भी किया है इस इंडिया में। तो इन चीजों को हम वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे 1991 रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि 1991 रिफॉर्म्स और उसके पॉजिटिव नेगेटिव, और या फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका प्लानिंग पीरियड के ऊपर, राइट, ओवरऑल जो स्ट्रेटजी हमारी रही। तो बेसिकली दिस शोज द सक्सेस ऑफ द प्लानिंग स्ट्रेटजी, एंड स्ट्रक्चरल रीजंस भी इसके हैं डेफिनेटली। नाउ सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ओके, देखिए यहाँ से हमें देखने की जरूरत है कि मेजर गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्पस देखने का है, यहाँ पर जो नजरिया देखने का हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमें एग्जाम में लिखने पड़े तो हम किस किस इनिशिएटिव पे फोकस करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट अगर खुद कुछ इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रही है, उनके नाम वो बार बार ले रही है, इसका मतलब वो इसके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसलिए ये इनिशिएटिव आपके डॉक्यूमेंट में दिख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में लिखने के लिए ये, देखो वैसे इनिशिएटिव तो बहुत सारे हैं, हम बुक में मतलब जो हमारे स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हैं तो 50 इनिशिएटिव हमारे हैं, गवर्नमेंट की 50 स्कीमें हैं। लेकिन गवर्नमेंट आज के समय में किस स्कीम को कहती है कि ये मेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ना, जिसके थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस को काउंट कराना चाहती है। तो ये स्कीम्स के बारे में हमें एक तो बेसिक्स पता होनी चाहिए, जब आप चैप्टर से पढ़ेंगे तो ये स्कीम्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। और दूसरी बात, अगर मेंस में क्वेश्चन लिखना होगा तो ये स्कीम का नाम हम यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज MSP for the 22 crops. It is consistently on rice. Okay, this is a very important policy. This is important for remunerative pricing. Right, this is important for remunerative pricing. Then we have various initiatives. These are the initiatives which are basically providing the support financially. Financial support, एक तरह से हम कह सकते हैं कि some kind of subsidy and social support. देखिए, जो हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं किसी भी सेक्टर में, वो दो तरह के इनिशिएटिव होते हैं। एक होता है सब्सिडी, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। सब्सिडी है जिसमें हम लोग डायरेक्टली कुछ फार्मर को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट होता है कि हम सेक्टर में जाकर के उस सेक्टर में हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट, जो गवर्नमेंट कलेक्टिवली सबके लिए कर रही है, राइट। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, FBY इज अ फसल बीमा योजना, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पर फार्मर बेसिस पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे किसान मानधन योजना है, किसान मानधन योजना इज ए स्कीम फॉर द पेंशन, राइट। पेंशन मिलेगी आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, 3000 रुपीज पर मंथ।
और उसके लिए जो फार्मर है वो भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो गवर्नमेंट है वो मैचिंग कंट्रीब्यूशन करेगी। मैचिंग कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जितना भी उसके लिए प्रीमियम बनेगा पेंशन के लिए, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन बनेगा, वो कंट्रीब्यूशन में से 50% फार्मर करेगा और 50% आपका गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। उसी तरह से जो हमारे पीएम किसान है, यहाँ पे तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है हमारे फार्मर्स को। ठीक है। 2000 रुपीज इंटू 3, 6000 रुपीज पर एनम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डीबीटी होता है। और थर्ड हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता है। फसल बीमा योजना इज फॉर द एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, जिसमें हम लोग प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट, अगर क्रॉप का डैमेज हो रहा है तो उसको हम लोग कवर करते हैं। और यहाँ की जो प्रीमियम जाती है, उस प्रीमियम में भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है। कुछ शेयर आपका फार्मर्स का होता है, कुछ शेयर आपका स्टेट का होता है, कुछ शेयर आपका सेंटर का होता है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये तीनों इनिशिएटिव्स, ऑल द थ्री इनिशिएटिव्स, दे आर फोकस्ड ऑन द सब्सिडी एंड द सोशल सपोर्ट। ठीक है। जैसे कि ये पीएम किसान है, ये सोशल सपोर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम उनको भेज रहे हैं पैसा। ठीक है। और ये आपकी सब्सिडी हो गई किसान मान धन योजना एंड फसल बीमा योजना, कि वो लोग भी अपने पास से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम लोग भी उनको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी सारी सब्सिडी वाले इनिशिएटिव्स हो गए। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20%, और जो सब्सिडी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80%। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर हम देखें ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में मेजर जो हमारा डिपेंडेंस था वो सब्सिडी के ऊपर था। फार्मर्स को हमने सब्सिडी दे करके, और इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी, इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और सब्सिडाइज्ड केमिकल फर्टिलाइजर, सब्सिडाइज्ड अदर सीड्स, है ना। तो हमने उनको हमेशा सब्सिडी दी। तो ये क्रिटिसिज्म भी है एग्रीकल्चर सेक्टर का कि हमने फार्मर्स को डिपेंडेंट बनाया। हमने उस पैसे को अगर इन्वेस्ट किया होता, अगर उस पैसे को हमने इरिगेशन में, रोड्स में, स्टोरेज में, मार्केटिंग में, मैकेनाइजेशन में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता, तो शायद हम लोग का एग्रीकल्चर बेटर होता। ठीक है। ये एक एनालिसिस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें हमारा एक इशू है कि सब्सिडीज आर मोर देन द इन्वेस्टमेंट। ओके। बट ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि उस टाइम पे अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन में सपोर्ट नहीं करते तो फार्मर्स कैसे एनकरेज कर होते। ओके। और ये फिर पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। एक बार कोई सब्सिडी स्टार्ट हो गई तो उसको बंद करना आपका पॉलिटिकली चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। इसके कुछ ऐसे हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से सब्सिडी हमेशा ज्यादा ही रहती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा कम ही रहता है। ठीक है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सिनेरियो है। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि इसके रीजंस क्या हैं। ओके। और सेम चीज अभी भी हो रही है, सेम चीज अभी भी हो रही है। इसको हम क्विकली रिवर्स नहीं कर सकते, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, बट इट विल टेक टाइम। तो ये हमारा हो गया सब्सिडी। एमएसपी भी आपका सब्सिडी का पार्टी है डेफिनेटली। एमएसपी भी तो सब्सिडी है आपकी, आउटपुट सब्सिडी हो गई आपकी। और एक इंपॉर्टेंट जो हम कर रहे हैं दैट इज डिजिटाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। तो बेसिकली एक टॉपिक आपका मेंस में आता है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये आपका मेंस का टॉपिक है। ठीक है? तो फ्रॉम वी कैन पिकअप द इनिशिएटिव्स फ्रॉम हियर कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं डिजिटाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन के लिए। तो यूज ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है, आप यहाँ पे जाके इसको अटैच कर सकते हो। रिसेंटली हम लोग कहाँ कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो ई नैम हमें हमेशा डिस्कस करते हैं, ई नैम को हम हमेशा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, व्हाट इज दिस। बेसिकली जो हमारी फिजिकल एपीएमसी मंडीज हैं, जो हमारी फिजिकल मंडीज हैं, हमने उनको एक डिजिटली कनेक्ट किया है। okay? हमारी जो मंडीज हैं वो फिजिकली ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करने के लिए कि कोई भी बायर, कोई भी सेलर ऑनलाइन जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराए थ्रू एपीएमसी, और वो कहीं भी जाके ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है। तो दिस इज गिविंग द फैसिलिटी ऑफ नेशनल प्राइस डिस्कवरी। नेशनल लेवल पे प्राइस डिस्कवरी हो सकती है, और जो मंडीज हैं वो आपस में कनेक्ट होकर के एक दूसरे की जो कमियां हैं वो पूरी कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ई नैम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट है। सेकेंड इज ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है एग्रीकल्चर में। हाँ, मैपिंग, वेरी गुड। हाँ, पेस्टिसाइड को स्प्रेड करने में, वेरी गुड। फिजिबिलिटी के लिए, वेरी गुड। उसी तरह से इंश्योरेंस के क्लेम के लिए हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम का काउंट करने के लिए हो सकता है, राइट। एग्री स्टैक,
एग्री स्टैक इज बेसिकली इट इज ए ऑनलाइन आर्किटेक्चर, ओके, ऑनलाइन फेडरेटेड आर्किटेक्चर। फेडरेटेड का मतलब हो गया कि स्टेट और सेंटर दोनों इसमें काम करेंगे, विच इज बेसिकली हेल्पिंग इन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द स्पेशली द गवर्नमेंट। दिस इज एग्री स्टैक। तो ये आप वर्ड यूज कर लीजिएगा, एग्री स्टैक। एग्री स्टैक जो है ये आपका गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग, मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग में काम आता है। ये पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट का प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में काम आती है। सॉरी, computerizing PACS. PACS here is Primary Agricultural Credit Society. तो बेसिकली हम लोग रूरल एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए एक हमारा बैंकिंग सिस्टम है, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट एट 3 लेवल। जो लोएस्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है हमारा? प्राइमरी, को हम PACS बोलते हैं, राइट। और उसके ऊपर हमारा कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं। और सबसे टॉप में हमारा कौन सा होता है? स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। तो जो हमारी लोवेस्ट लेवल की सोसाइटीज हैं, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं, जो विलेज लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जो विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑपरेट करती है, इनको भी हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, राइट। तो देखिए ये सब चीजें एग्जैक्टली एज इट इज आप याद कीजिए और इसको यूज कीजिए। ये 4 इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे ई टेक में काम आएंगे। यूज ऑफ ई टेक इन द एग्रीकल्चर, इसी को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। यही हमारा वैल्यू एडिशन है। इसी के ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, विच ऑफ दीज इनिशिएटिव्स आर पार्ट ऑफ द डिजिटल इंक्लूजन एंड मैकेनाइजेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये क्वेश्चन आपका सेम प्रीलिम्स में भी बन सकता है, राइट। हाँ, नाबार्ड भी इसमें रेगुलेट करते हैं बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम लोग, अभी तक जो हमने बात की ये सब बात हमारी थी सब्सिडी के बारे में, फिर हमने बात की डिजिटाइजेशन के बारे में। नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ओके। तो फर्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू एग्री इंफ्राटेक फंड। एग्री इंफ्रा फंड, यहाँ पे लिख लीजिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा एक सेपरेट एक फंड होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। और प्रधानमंत्री विशेष स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो दिस इज कृषि सिंचाई, दैट इज इरिगेशन। और यहाँ पर हम कहाँ पे फोकस करते हैं? हमारे मेजर इनिशिएटिव्स यहाँ पर क्या होते हैं? इसको हम पर ड्रॉप मो क्रॉप भी बोलते हैं, हाँ जी। बेसिकली जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना, माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करना। तो ये आपका मेजर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ये सब हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आता है, ठीक है। AIF लेकिन वो काफी बड़ा फंड है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये बहुत बड़ा फंड है जो PACS को भी लोन दे सकता है। PACS जो है वो आपका एक बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती है, लोवेस्ट लेवल पे हम कह सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। और ये मल्टीपल तरह के लोन दे सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, मोस्टली नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं, ठीक है। जबकि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेडिकेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिग अमाउंट, राइट। एग्री इंफ्रा फंड में गवर्नमेंट यूज करेगी इस पैसे को, गवर्नमेंट यूज करेगी। और PACS में ये फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, एक तरह से फार्मर्स को उनकी कंजम्पशन नीड्स के लिए, उनके मे बी जो वो इनपुट्स खरीदने हैं उनको, या उनको और भी कुछ एक मशीनरी खरीदनी है उसके लिए भी दे सकते हैं। ये फार्मर्स यूज करेंगे और ये आपकी गवर्नमेंट यूज करेगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में गवर्नमेंट यूज करेगी इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल
agricultural practices. This is very important, especially in the context of this adverse impact of green revolution, right? तो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ओके, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, दैट मींस इट इज फोकसिंग ऑन द माइक्रो इरिगेशन. माइक्रो इरिगेशन जैसे कुछ एग्जांपल बताइए. हाँ, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन. तो यहाँ से क्या फायदा होता है आपका, हमारा इससे क्या होता है, वाटर सेविंग्स, वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. एक वर्ड यूज करते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, राइट. एंड प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एंड द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, राइट. सो दिस इज ऑल्सो फोकस, राइट. और लास्ट में हमारा एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू PM आशा. PM आशा के दिस इज बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग MSP फॉर सम सिलेक्टेड क्रॉप्स, जैसे कि पल्सेस हमारी हो गई, ऑयल सीड्स हो गई. उसके लिए हम कुछ इनोवेटिव MSP प्रोवाइड कर रहे हैं. और देखिए, ओवरऑल आप देखिए इसको, स्लाइड को एक मान के चलिए कि हमारा रेडीमेड आंसर है. फर्स्ट हमने बात की MSP की, फिर हमने बात की सब्सिडीज की, फिर हमने बात की डिजिटाइजेशन की, फिर हमने बात की इन्वेस्टमेंट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, और लास्ट हमने बात की फूड सिक्योरिटी की. यहाँ से एक आपको एक चीज और मिल सकती है कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स लिखनी हो तो हम लोग एक एक पॉइंट उठाएंगे और इनकी प्रॉब्लम लिखते चले जाएंगे, राइट. मतलब ये स्कीम की जरूरत क्या है, वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम बन जाती है. अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सजेशंस देने हो तो भी हम लोग को यहाँ से आइडिया लग जाएगा, MSP में क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, सब्सिडी में क्या प्रॉब्लम है वो ठीक करनी है हमें, टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है सब उसको ठीक करना है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, सस्टेनेबिलिटी में क्या इशू है, फूड सिक्योरिटी में क्या इशू है. आर यू गेटिंग? मतलब जो भी आपके पास है ना, सॉरी जो भी चीज आप पढ़ो उसको हमेशा सोचो कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है. रुक के पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, चीजों को कंप्लीट नहीं करना है. इकोनॉमिक रिव्यू कंप्लीट, फिनिश, फिनिश करना नहीं है, फिनिश भी करना है, टाइमलाइन भी मेंटेन करनी है, लेकिन हमेशा सोचते रहना है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करते रहना है. इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं. ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट से हमने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को समराइज कर दिया, ठीक है. इसलिए मैंने कहा कि जो आपका इकोनॉमिक रिव्यू है वो एक पूरी इकोनॉमी का एक समरी है हमारा, उसके थ्रू हम पूरी इकोनॉमी को रिवाइज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, किस किस एरिया में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ठीक है. हाँ जी. शुगर केन नहीं, शुगर केन तो स्टेट गवर्नमेंट उसको खरीदती है. हाँ, FRP. नहीं 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 नहीं, शुगर केन नहीं है इसमें. नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्री पे आते हैं हम लोग. तो देखिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देख लिया है, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया हमने, एग्रीकल्चर देख लिया. अब हम आते हैं इंडस्ट्री के ऊपर. इंडस्ट्री में ग्रोथ इज 8% इन फाइनेंशियल ईयर 24, एंड जो हमारा एक एवरेज ग्रोथ रहा है वो 7.1% का रहा है. देखिए ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, ओवरऑल हमारा टारगेट होता है आइडियली इकोनॉमी शुड ग्रो एट मोर देन 10%. ओवरऑल जो इकोनॉमी है हमारा अभी टारगेट कितना है, 7.3% का, ठीक है. बेसिकली अभी तो हमारा 7 to 8% की रेंज में चल रहा है, लेकिन आइडियली गोइंग फॉरवर्ड वी शुड टारगेट द 10% प्लस, राइट. अब इसमें 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका टारगेट हमारा 4% के आसपास ही रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की अपनी लिमिटेशन है, राइट. बट इंडस्ट्री और सर्विसेज दीज कैन बी डन बेटर, ओके. तो इंडस्ट्री में हमेशा हमारा टारगेट होता है डबल डिजिट का, राइट. और अभी हम लोग 8% पर है, ठीक है. ये एक ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में हमेशा कमी रहेगा, 4% भी अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर 8% हमारा अभी है, लेकिन हम 10% और इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं डबल डिजिट, ओके. सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में हम डबल डिजिट रखना चाहते हैं.
ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड मेक इन इंडिया। तो बेसिकली जो सबसे मेजर इनिशिएटिव्स हैं वो है मेक इन इंडिया और PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये आज के समय में फ्लैगशिप स्कीम है हमारी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि व्हाट आर द टू फ्लैगशिप स्कीम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेशली मैंने बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो वी हैव द मेक इन इंडिया and the production link incentive. Make in India we started way back in 2014, and this is basically promoting the domestic manufacturing. We want to make the India a domestic manufacturing hub, right? And we want to promote the self reliance, आत्मनिर्भरता, right? तो हम लोग जो है अपने ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू न्यू माइंडसेट, थ्रू न्यू infrastructure. So we are building new infrastructure and through focus on 25 sectors. 25 सेक्टर्स पे हम लोगों ने फोकस किया है, राइट? 25 सेक्टर्स पे हम लोगों ने फोकस किया है। ये आपका मेक इन इंडिया हो गया। PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, हियर वी आर फोकसिंग 14 सेक्टर्स, ओके। और हम लोग यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह का इंसेंटिव यानी कि सब्सिडी हो गई बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन, ओके। तो 1% to 20% ऑफ द इंसेंटिव based on the incremental production. Okay, then Startup India. Startup is also a major initiative. Startup is also a major initiative. The Startup India, we are recognizing the startups which are working in India and which are having the certain age, okay, less than 10 years, और जिनके टर्नओवर भी लेस देन 100 करोड़ रुपीस है, उनको हम बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ स्टार्टअप्स को, और उनको हम सपोर्ट करते हैं। टोटल 19 इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। तो इजी पेटेंट फाइलिंग, इजी अप्रूवल, एक फंड हमने इनके लिए बनाया है, स्टार्टअप्स के लिए सेपरेट फंड हमने बनाया है। तो ये हम सभी इनिशिएटिव स्टार्टअप्स के लिए ले रहे हैं, ओके। एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हमने देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, जैसे कि बेटर अप्रूवल ईबीज पोर्टल के थ्रू, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसके थ्रू हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। MSME, very important sector, micro, small and medium enterprises. Okay. After the 2006 Act, we are focusing on this, and this time in the budget, there is a very major initiative for ensuring the timely payment to MSME. Okay. So under the Income Tax Act, ये बजट के अंदर प्रोविजन आया था इस बार। इनकम टैक्स में द पेमेंट इफ इट इज डन, यानी कि अगर सपोज मैंने कुछ परचेज किया है MSME से, MSP मतलब कि आप मान के चलो कि छोटी कंपनी छोटी फर्म है, मतलब ठीक है। MSME का मतलब छोटी कंपनी छोटी फर्म है, उसको हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या होता है उसका। तो बेसिकली अगर मैंने किसी छोटी फर्म से कोई गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग पेमेंट नहीं करते टाइम पे, क्योंकि बार्गेनिंग पावर इनकी कम होती है। डिपेंडेंट होते हैं ये अपने कस्टमर पे, जो बड़े कस्टमर्स होते हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं। तो मैं बड़ी कंपनी हूँ और मैंने छोटी कंपनी से कुछ गुड्स खरीदे और मैं उनकी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ टाइम पे, ठीक है, 90 डेज में कर रहा हूँ, 100 डेज में कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि इन्होंने बोला है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो इनकम टैक्स में आपको वो खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो हमारे जो हमारी सेल्स रेवेन्यू होता है उसमें से कम हो जाता है, तब हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर हम पेमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे विद इन 45 डेज, तो 45 डेज यहाँ पे जो उन्होंने बोला है टाइमली पेमेंट के लिए, तो इसका मतलब है कि 45 डेज के अंदर हमें ये पेमेंट करनी है। मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, अगर मैंने 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दी तो मुझे इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर मैंने 45 डेज के बियॉन्ड करी, जिस साल में मैं इसको वो करूंगा, पेमेंट करूंगा, उस साल में जाके डिडक्शन मिलेगी, उस ईयर में जाके डिडक्शन मिलेगी, ठीक है।
तो बेसिकली ये एक चैलेंज हो गया है, तो 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी है। ये एमएसएमई के लिए फायदा है, एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएटिव की तरह काउंट किया है, काफी इसका पोजीशन भी चल रहा है। तो दिस इज द इनिशिएटिव फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द एमएसएमई। ओके, नेक्स्ट इज उद्यम पोर्टल एंड उद्यम असिस्ट पोर्टल। So this portal is basically for registration of MSMEs. जो MSMEs हैं वो अपने आप को यहाँ पर जाकर के रजिस्टर करा सकते हैं, और यहीं पे रजिस्टर कराने के बाद इनको गवर्नमेंट से जो सपोर्ट चाहिए वो मिल सकती है, और यहीं से इनको एक तरह से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिस आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये आपकी एमएसएमई है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अंडर द मुद्रा योजना वी आर प्रोवाइडिंग देम लोन्स, और थ्री कैटेगरी ऑफ लोन्स होते हैं। विच कैटेगरीज आर देयर? थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे छोटा कौन होता है? टू। ठीक है, क्रेडिट गारंटी एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी। तो क्रेडिट गारंटी वी आर प्रोवाइडिंग, राइट, टू द स्कीम लाइक CGTMSE एंड ECLGS। नाम इनके लिख सकते हो आप चाहो तो। CG, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ट्रस्ट फॉर MSME। CGTMSE, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट, सेंट्रल क्रेडिट गारंटी फंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड। CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करता है माइंड में। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME। तो ये एक ट्रस्ट है जो कि जो बैंक्स MSMEs को लोन देते हैं। अगर MSME डिफॉल्ट करती है तो ये बैंक्स को इस ट्रस्ट के थ्रू हम लोग एक गारंटी देते हैं कि अगर MSME ने आपका लोन रीपे नहीं किया तो हम आपको एक तरह का इंश्योरेंस दे रहे हैं, हम आपको पे कंपनसेट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब एक लीगल फॉर्म होगी ट्रस्ट की, मतलब एक फंड हमने बनाया, जो बैंक्स या जो NBFCs जो MSME को लोन देते हैं, अब अगर MSME ने डिफॉल्ट किया तो ये जो बैंक्स हैं इनको इस फंड से कंपनसेशन मिल जाए। पर्पस क्या है कि जो बैंक्स है, जो NBFCs है, उनको इंसेंटिवाइज करना, उनको एनकरेज करना कि आप लोन दीजिए, अगर प्रॉब्लम आप फेस करोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारा सेकंड ये है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन
डिटेल आपकी डेमोग्राफिकली शेयर हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड जो हमारी डाटा शेयरिंग सर्विस होती है दैट इज नोन एज सिबिल स्कोर, विच इज बेस्ड अपॉन द क्रेडिट हिस्ट्री। तो ये एक तरह से दिस इज इंडिकेटिंग आवर क्रेडिट वर्दीनेस, कि हम कितने क्रेडिट वर्दी हैं, है ना। हमारी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर हम लोगों ने लोन लेकर के रीपे किए या नहीं किए, है ना। लोन हमें मिला भी कि नहीं मिला, अगर लोन ही मिला, मिला ही नहीं कभी भी, तो ठीक है, आपने डिफॉल्ट भी नहीं किया होगा, तो वो भी बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो थोड़ा बहुत लोन आपने अगर लिया और आपने उसको टाइमली रीपे कर दिया, तो वो बड़ी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है, इसको सिविल स्कोर से हम काउंट करते हैं। तो अगर कहीं से लोन मिले तो थोड़ा बहुत लोन ले लो, 50,000 रुपये का चाहे लो, और उसको रीपे करते रहो, उससे आपकी ये हिस्ट्री डेवलप हो जाएगी। छोटा लोन पहले मिलेगा, वहां से आपका स्कोर डेवलप होगा, तो वहां से फिर बाद में बड़ा लोन ले सकते हो। लेकिन लोन कभी भी जो है खर्चे के लिए मत लेना, आईफोन के लिए लोन मत लेना या वेकेशन के लिए लोन मत लेना। कभी भी लोन लो तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लो। इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट मतलब आपको घर खरीदना है, कार के लिए भी मत लो। कार के लिए भी लो जब आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाए, कि आप सैलरी से पे कर सको, समझ रहे हो। तो लोन हमेशा कैपिटल के लिए लेना चाहिए, कैपिटल आपको जनरेट करके देगा पैसा, जहाँ से आप लोन रीपे कर सकते हो। अदरवाइज लोन डेट, हमारा जो डेट होता है वो हमारा एक साइकिल बन जाता है, विशियस साइकिल बन जाता है, जिसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं। फिर हम कमा रहे होते हैं, जिंदगी जी रहे होते हैं लोन को रीपे करने के लिए, ईएमआई पे करने के लिए। हम नौकरी अपने मालिक की नहीं कर रहे होते, हम ईएमआई की नौकरी कर रहे होते हैं।